Yes, students, very good morning. So we have discussed about cube, cuboid and cylinder and the questions based on their curved surface area, total surface area, right? And now we will start with the next concept, that is the questions related to the volume of these figures. Priyansh, your holidays homework, your copy, nothing is with me. कुछ भी नहीं मेरे पास नहीं आया, आप रीसेंड कर देना आज. ओके चलिए. So we will now discuss the questions which are based on the volume of cube, cuboid and cylinder. Avdhi, what is the volume of cylinder? Formula? अभी फॉर्मूलाज को देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे लगता है यू शुड लर्न. बिल्कुल ठीक, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. Pi r square h is the volume of the cylinder, and no need to turn over the pages to tell me the formula. You should remember them now. You are going to sit in revision test and afterwards in a offline exam. So better to learn the formulas. Hanji, last bench, Harshita. What is the volume of cube? That is the total surface area. Arshpreet, you tell. Side raised to power 3. That is the volume of cube. Okay. Sarthak, what is the volume of cuboid? Length into breadth into height. So these are the formulas which are concerned with the volume of the figures. And next exercise 11.4 we are going to start with. That is based on the volume of these three figures. Chaliye, let us start. 11.4 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 से मैं शुरू करने लगी हूँ. फर्स्ट सेकंड अब अपने आप करोगे. थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर. वी आर गिवन, सबसे पहले अगर आपके पास क्यूबॉइड की बात हो रही है तो इट मस्ट हैव सम लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. नाउ व्हाट अबाउट दीज थ्री थिंग्स आर गिवन टू अस? वी आर गिवन nothing is given. We are given just the volume, and the volume is 900 centimeter cube, and we are given the base area, and base area is given to be 180 centimeter square. Base area is given to be 180 centimeter square. Now जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के लिए हमने एक फॉर्मूला किया था. वॉल्यूम का आंसर हमें दिया हुआ है 900, बट वी नो द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम्स फॉर्मूला वी हैव डन इन टू वेज. वन इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, अनदर इज एनीवन एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. रिमेंबर दिस बिकॉज समटाइम्स जैसे कि इस क्वेश्चन में हम L into B into H नहीं लगा सकते because neither L nor B nor H is given to us. We are given the area of the base, so we will use the formula area of base into H. This is equal to 900. तो जो हमें given है उसके accordingly we will move on, right? So Priyansh, get separated. बच्चे बेंचेस आर वेकेंट, सो यू आर सपोज टू गेट सेपरेटेड. अरमान के साथ बुक तो आप शेयर कर सकते हो, बट सिटिंग साइड इट इज नॉट अलाउड व्हेन द बेंचेस आर वेकेंट, राइट? नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ बेस? इट इज गिवन टू बी 180. वी नीड टू फाइंड h. कीप h with you. 900 upon 180. Do the cutting. You will get the answer to be 5 meter. So in such questions, students get confused. They were thinking that the statement of the question is wrong. We are not given length and breadth. How we can find a height? So if they are not knowing this fact that volume can also be replaced by the formula area of base into height. ठीक है? So area of the base into height आपने use करना. Question number 4. A cuboid of dimension 60 by 54 by 30. How many small cubes each with side 6 centimeter can be placed in given cuboid? देखो दो चीजों की बात हो रही है क्वेश्चन में. One is cuboid and another is cube. If we are talking about cuboid,
we are given its length, its breadth and its height. And if we are talking about cube, we are given edge of the cube is equal to 6 centimeters. Edge of the cube is equal to 6 centimeters. 180 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो गया, 0 से 0 कटा, 18 90 के टेबल 18 के टेबल में 95 नंबर भी आता है. क्लियर? So we are having two figures. One he is talking about cuboid, another he is talking about cube. ठीक है, एक cuboid दूसरा cube. चलिए, so हमारा क्वेश्चन क्या है, how many cubes, small cubes with the side 6 centimeter can be placed in the given cuboid. कि इस क्यूबॉइड में मान लो आपके पास एक बॉक्स है, जैसे कि एक चॉक बॉक्स ही आपके पास होता है, उस चॉक बॉक्स में मान लो आपने छोटी छोटी क्यूबिकल डिब्बियां रखनी है, एंड यू जस्ट वांट टू फाइंड दैट हाउ मेनी द स्मॉल बॉक्सेस कैन बी प्लेस्ड इन दैट बिगर क्यूबॉइडल बॉक्स. एंड यू नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी, दैट इसमें कितनी चीजें आ सकती हैं, दैट मीन्स कैपेसिटी की बात हो रही है, एंड कैपेसिटी इनडायरेक्टली इज द वॉल्यूम. हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है, उसके लिए हमें दोनों का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. दोनों में से बड़ा कौन है, क्यूबॉइड के क्यूब? अगर हमने किसी डिब्बे में छोटी छोटी डिब्बियां रखनी है तो कौन बड़ा होगा? डिब्बा बड़ा होगा, इसका मतलब क्यूबॉइड बड़ा है, क्यूब छोटा है. सो टू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स, व्हाट वी नीड टू डू, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ठीक है, सो आई एम राइटिंग नंबर ऑफ क्यूब्स, पहले अलग से वॉल्यूम निकाल लो, ऐसे कर लो, पर सॉल्व मत करना, सीधा निकाल लो. वॉल्यूम V1, दिस इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बाद में कटिंग कर देंगे, 60 इंटू 54 इंटू 30, ऐसे ही छोड़ दो. वॉल्यूम V2 ऑफ क्यूब, दिस इज इक्वल टू एच क्यूब, दैट इज 6 क्यूब. 6 को 3 टाइम्स लिख दो, कटिंग आसानी से हो जाएगी आपके पास. ऐसे वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स, सो आई एम राइटिंग नंबर ऑफ क्यूब्स, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जिसको कि हमने V1 बोला, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, दैट इज V2. सम ऑफ द स्टूडेंट दे रिमेन गॉट कंफ्यूज्ड, व्हाट दे डू, वो क्यूब के वॉल्यूम को क्यूबॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड करते रहते हैं, जबकि वॉल्यूम हमेशा बड़े का छोटे से डिवाइड होगा. तो वही तो मैं देखने लगी, नंबर ऑफ क्यूब्स ही तो निकालने लगे. तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूबॉइड, दिस इज 60 इंटू 54 इंटू 30 एंड क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6, कितना आ रहा है कटिंग करके? 450 आई थिंक, 450 क्यूब्स आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशंस. Next question. Find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter square cube, and diameter of base is 140 centimeter. So what is given to us? Let us firstly write it and then we will try to understand the statement. Question 5th. Diameter of the base, it is given to be kitna? 140 centimeter. And so is the radius, half of the diameter. And volume is equal to 1.54 meter cube. Now keep one thing in mind. अब आगे क्या है क्या नहीं कैसे solution करना है, that is a different thing. But keep one thing in mind, that volume is given in the meters. So we will convert this radius into meters. Centimeter converted into meter, divide by 100, and that is equal to 0.7.
ठीक है, तो ये 0.7 मीटर आ गया. So we convert the radius into meters. Why so? Because our volume is in terms of meters. क्योंकि वॉल्यूम मीटर्स की टर्म्स में है तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा रेडियस को. नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब. किसका वॉल्यूम है ये? किसका वॉल्यूम गिवन है? सिलेंडर का. क्या फॉर्मूला है सिलेंडर के वॉल्यूम का? पाई आर स्क्वायर एच. सारे बोलो पाई आर स्क्वायर एच. एच बोला ही नहीं अनिक ने. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, इज इट ओके? नाउ वी विल रिप्लेस द वैल्यू. पाई विल बी रिप्लेस्ड बाय 22/7 and r is 0.7 square. Height we want to find. So this is 22/7 into 0.49 into h is equal to 1.54. Last period किसका है आपका? Okay. ठीक है, so h is equal to 1.54 multiply by 7 divided by 22 multiply 0.49. ये आ गया. पहले डेसिमल खत्म कर दो. दिस इज 154 अपॉन 100 इंटू 7 22 49 इंटू 100. नीचे से डेसिमल रिमूव हुआ, ऊपर 100. एच है, नीचे का 7 ऊपर चला गया, ऊपर वाली चीजें नीचे आ गई. 1.54 तो जहां है वही रहेगा. ये तो वहां था. लोग इसको पास आ रहे हैं मिलने इसको. ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ दिस डेसिमल रिमूव. 100 नीचे आया, यहां से डेसिमल हटा, 100 ऊपर जाएगा. 100 कट. This is equal to 49 upon 49. So h comes out to be 1 meters. This is the height of the cylinder. नहीं, अगर मीटर्स में आपने निकाला है कोई बात नहीं, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Sixth question is, a milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 and length is 7 meter. Find quantity of milk in liters it can be stored in itself. First of all, radius of the milk tank is given to be 1.5 meter and height of the milk tank is given to be 7 meter. This is the radius and that is the height. हम फाइंड करना चाहते हैं that how much milk it can hold. That means we want to find its capacity. Capacity means volume. And what is the formula for the volume of cylinder? Pi r square h. So milk that tank will hold is equal to pi r square h. 22/7 r square 1.5 square h is 7. 22/7 2.25 into 7. 7 get cancelled. So this is 9950 meter cube. After solving, you will get 9950 meter cube. And you know, we have to convert it into liters. उसने पूछा how many liters milk it can hold. This is meter cube. It is to be converted into liters and you will do. Yes, Somil? मैम वो 99 की जगह 49 नहीं आएगा? एक मुझे चेक करने दो. हाँ 49 आएगा. 4950 meter cube. And we need to convert it into liters.
so it will be divided by 1000. Meter cube converted into liters, divide by 1000, so 4.95 liters of the milk can be contained in the container. Question number 7. If edge of a cube is doubled, देखो ध्यान से, this is the old, this is the new. Earlier I am taking edge to be A and edge is doubled, so it will become कितना 2A. Edge A double हुआ तो क्या बन गया 2A. If the edge of the cube is doubled, how many times the surface area increases? सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा? तो सबसे पहले आपने दोनों केसेस में सरफेस एरिया निकाल लेना है. I told you when it is written surface area, you will find the total surface area. तो पहले आप इसका टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, ठीक है. इसका टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, 6 into 4A स्क्वायर 24A स्क्वायर. पुराना सरफेस एरिया 6A स्क्वायर एंड द नया सरफेस एरिया इट बिकम्स 24A स्क्वायर. हम ये फाइंड कर रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज. हाउ मेनी टाइम्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन में देखना है. अगर तो उसने पूछा होता हाउ मच सरफेस एरिया इज इंक्रीज, देन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सब्ट्रैक्शन कि आपने सब्ट्रैक्ट करके बता दिया कि कितना बढ़ गया. बट अगर उसने पूछा हाउ मेनी टाइम्स, दैट मीन्स आपको मल्टीप्लाई में आंसर जो है वो फाइंड करना है. सी हाउ मेनी टाइम्स, आपने क्या करना है, जितना सरफेस एरिया हमारे पास ओरिजिनल था दैट इज 6A स्क्वायर, इसमें से 6A स्क्वायर को अलग कर लो तो बाहर क्या आएगा 4. इज इट सो? मैंने उसने पूछा हाउ मेनी टाइम्स द सरफेस एरिया विल इंक्रीज, कितना टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि पुराने सरफेस एरिया से कितना टाइम ज्यादा है. तो मैंने इसमें से पहले पुराना सरफेस एरिया अलग कर लिया, कितना है 6A स्क्वायर. अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आए, बोलो 4 से. इसका मतलब हाउ मेनी टाइम्स द सरफेस एरिया विल इंक्रीज, 4 टाइम्स द सरफेस एरिया विल इंक्रीज. सीधी सी बात है, पेपर में अगर आपको नहीं भी आता, भूल जाता है, तो कम से कम आप दोनों के सरफेस एरियाज तो निकाला हो, आपको हाफ क्रेडिट तो मिल ही जाएगा. फिर आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी पता चल जाना चाहिए कि हमें ये बताना है कि कितने टाइम सरफेस एरिया इंक्रीज होगा. तो फॉर दैट हमने क्या किया, इसमें से सरफेस एरिया को अलग से निकाल लिया और साथ में किसके मल्टीप्लाई किया 4 को, 4 into 6A स्क्वायर. सो हमें अभी आपको नहीं पता चला, मुझे लगता है नहीं पता चला, तभी आपकी शक्ल. यहां तक क्लियर है कि दोनों के सरफेस एरियाज निकालो. अब वो कह रहा है कि जो नया सरफेस एरिया आया, हाउ मेनी टाइम्स इट विल इंक्रीज. नया सरफेस, नेचुरली देखो जब किसी हम क्यूब का एज बढ़ा देंगे तो उसका साइज भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना. मैंने मतलब एक मान लो क्यूबिकल टेबल खरीदा है, उसका एज छोटा सा था, मुझे लगा कि इस पे तो मेरे घर का जब कोई डिनर पे आएगा सारा कुछ आएगा ही नहीं, तो मैंने उसका एज को बढ़ा दिया, तो नेचुरली उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. तो नए सरफेस एरिया, जो नया सरफेस, फिर किसी ने मेरे को पूछा कि ये पुराने टेबल से कितना बड़ा है, तो मैं कहूंगी पुराने टेबल पे मेरे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एज था, इसका 12 सेंटीमीटर 3 टाइम्स बड़ा है ना. मल्टीप्लाई करके मैंने बता दिया. इसी तरह से अगर किसी ने पूछा कि नया सरफेस एरिया पुराने सरफेस एरिया से कितने टाइम्स इंक्रीज है, तो मुझे इसमें से पुराने सरफेस एरिया को अलग कर लेना चाहिए. 24 है ना, इसमें से 6A स्क्वायर अलग कर लो, तो कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए ताकि 4 के साथ. तो हाउ मेनी टाइम्स द न्यू सरफेस एरिया इंक्रीजेस, 4 टाइम्स. क्लियर है. सेकंड पार्ट देखो, how many times will its volume increases. So first of all I am finding the volume, then we will see that how many time it is increasing. I am finding V1 volume of old cube and I am finding V2 volume of new cube. पिछले क्वेश्चन के जैसे अवधि बता सकते हो हम किस तरह से इसको अलग अलग कर सकते हैं. ए क्यूब को अलग कर लो, यानी कि पुराने वॉल्यूम को अलग कर लो. बाहर कौन बचा 8,
तो चाहत क्या लिखेंगे? नहीं, अब कैसे कंक्लूड करेंगे? इंग्लिश में क्या लाइन लिखेंगे? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब है बेटे, क्यूब की बात हो रही है। बाय हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स। पुराने वॉल्यूम से नया वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया। इज इट ओके? चलिए टर्न ओवर द पेज। एक से बढ़कर एक सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। Let us start with question number 8. Question number 8. Eighth question. Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. क्यूबॉइडल इस तरह से हमारे पास एक रिजर्वर है, पानी रिजर्व करके रखा जा रहा है, इसमें ऐसे ऐसे पानी डाला जा रहा है। 1 मिनट में कितना पानी पोर हो रहा है? 60 लीटर्स। 1 मिनट the water which is poured in this reservoir, that is 60 liters. If the volume of the reservoir is 108 meter cube, बच्चे you people are not concerned whatever I am doing in the class on the board. बच्चे कोई डर, कोई खौफ, कोई है पेपरों का, रिवीजन टेस्ट का? आपको पता है you people are going to sit in 9th standard and 8th में this is the provision, this is, you can say, this is this kind of consequences you can see that if you are getting in a single subject like maths or science, you may sit in supply or compartment exam. Only then you will be promoted to standard 9th. So better हम अच्छे से अभी मेहनत कर लें ताकि हमें दोबारा ना पेपर देना पड़ जाए। चलिए, volume of the reservoir is 108 meter cube. Find the number of hours it will take to fill the reservoir. कितना टाइम लगेगा अगर हम इस रिजर्वर को पूरा पानी से भरना चाहते हैं? If I want to fill this reservoir up to the brim, that means पूरा, पंजाबी में नक्को नक भरना चाहते हैं सीनू, then how much water is to be poured in it? स्टेटमेंट पढ़ के मुझे बताओ इसमें कितना पानी डालना चाहिए ताकि ये पूरा भर जाए? मैं कहती हूँ एक गिलास का, एक जग का वॉल्यूम 3 लीटर्स है, तो फिर मैं दूसरे वर्ड्स में आपसे पूछती हूँ उस जग में कितना पानी आएगा? 3 लीटर्स। 3 लीटर्स। तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? इसमें लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वर इज 108 मीटर क्यूब, तो इसका मतलब उस रिजर्वर को पूरा भरने के लिए कितना पानी डालना है? 108 मीटर क्यूब। 108 मीटर क्यूब, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिजर्वर को इफ आई वांट टू फिल इट फुली अप टू द ब्रिम कंप्लीटली, आई हैव टू पोर 108 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इन दिस रिजर्वर। तो हमारा क्वेश्चन ये हुआ कि 108 मीटर क्यूब पानी भरने में कितने आवर्स लगेंगे? If I want to fill 108 meter cube of the water in this reservoir, then how many hours it will take? यानी कि यूनिटरी मेथड की बात करें तो हमें टाइम निकालना है, ठीक है। We want to find time. आपको पता है यूनिटरी मेथड में जो निकालना होता है हम सॉल्यूशन उसी से शुरू करते हैं, ठीक है ना। जिसमें कहते हैं हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव, यू विल से नंबर ऑफ फिंगर्स आई हैव इज 5। वैसे ही हाउ मेनी टाइम इट विल टेक, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर, तो हमें टाइम से ही शुरू करना है। टाइम टेकन टू फिल दिस मच इज दिस। फर्स्ट लाइन में आपको टाइम कितना पानी भरने का दिया हुआ है? हर्षिता यू टेल, फर्स्ट लाइन रीड करके मुझे बताओ कि 60 लीटर्स भरने में कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट। सो आई विल राइट टू फिल 60 लीटर वाटर, टाइम टेकन इज इक्वल टू 1 मिनट। एग्री? बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमें फिल करना है, मैंने वहां पे थोड़ा सा छोड़ा, कैलकुलेशन थोड़ी सी मैं इधर करना चाहूंगी। हमें फिल करना है 108 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, हमें इतना फिल करना है। इसको लीटर्स में कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई बाय
1000। तो हम लीटर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया ताकि कि हमारा पूरा क्वेश्चन लीटर्स में चल रहा है। इतना पानी फिल करने में कितना टाइम लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन। इतना पानी फिल करने में कितना टाइम लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन। सीधी सी बात है कि अगर 1 मिनट 2 लीटर पेट्रोल से गाड़ी जो है वो 5 किलोमीटर चलती है, तो 10 लीटर पेट्रोल से गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है ना कि इतना लीटर भरने में 1 मिनट, तो इतना लीटर भरने में कितना टाइम। तो आपको पता है यूनिटरी मेथड में सेंटर वाला स्टेप किसके लिए आता है, 1 के लिए। यूनिटरी मेथड का यूनिटरी क्या होता है, यूनिटरी मतलब 1। तो यूनिटरी मेथड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बीच वाला स्टेप कैलकुलेशन हमेशा 1 के लिए करता है। तो यू विल राइट टू फिल 1 लीटर ऑफ वाटर टाइम टेकन, क्या आएगा 1/60। ये 160 नीचे आ गया, एग्री। एंड वी वांट टू फाइंड टू फिल 108,000 लीटर्स ऑफ वाटर टाइम टेकन। अब यूनिटरी मेथड क्या कहती है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो 1/60 multiply 108,000. So 0 0 get cancelled. 1800 मिनट्स, और हमें इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। 1 आवर हाउ मेनी मिनट्स, 60। तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने आवर्स लग रहे हैं, 30 आवर्स। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप इसको उन क्वेश्चंस को याद करते हुए करो जो कभी आपने 6th 7th में यूनिटरी मेथड से किए थे, कि 10 लीटर पेट्रोल से 5 किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो 20 लीटर पेट्रोल से गाड़ी कितनी चलेगी। 60 लीटर पानी भरने के लिए 1 मिनट लगता है, तो 108,000 1,08,000 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन सिर्फ ये है, सिर्फ घुमा के बात उसने पूछी है कि पूरा फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने सोचा कि पूरा फिल करने के लिए उसमें पानी डालना कितना पड़ेगा, उतना ही पानी उसमें डालना पड़ेगा पूरा फिल करने के लिए जितना उसका वॉल्यूम है। एंड वॉल्यूम कितना है, 108 मीटर क्यूब। उसको लीटर्स में कन्वर्ट। वेरी, मैं कहती हूँ इस क्वेश्चन को करके उतना ही मजा आता है जितना हमें पिज्जा खा के मजा आता है, अगर आप समझ के करो। नहीं तो इससे आपको नफरत हो जाएगी इस क्वेश्चन से कि क्या है ये क्वेश्चन। क्लियर है कॉन्सेप्ट बिहाइंड। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स इसके डिस्कस करने लगे हैं। लेट अस डिस्कस द एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 8 के जैसा कौन सा क्वेश्चन बुक में है, मेरे को फटाफट से बताओ तुषार। एग्जांपल नंबर 8 और 11.4 का कौन सा क्वेश्चन एक जैसे हैं दोनों। थर्ड क्वेश्चन इज सिमिलर टू एग्जांपल नंबर 1। क्या दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, बेस एरिया। हमें क्या फाइंड करना है, हाइट। कौन सा फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, ये अपने आप हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 9 आई एम डिस्कसिंग। Example 9, look at your books. A godown is in the form of cuboid. एक गोडाउन है, उसकी हमारे पास लेंथ 60, ब्रेड्थ 40 एंड हाइट 30 गिवन है। ये गोडाउन है। दूसरी तरफ क्यूबिकल बॉक्स हैं एंड वॉल्यूम दिया हुआ है। ये क्या हो गया, मैं श्योर। एक गोडाउन है, उसमें क्यूबिकल बॉक्स रखने हैं, और इस बार हमें वॉल्यूम बॉक्स का दे दिया गया। बुक वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया था, हमें वॉल्यूम दोनों का निकाला था। इस बार जो चीज बीच में रखनी है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। एक गोडाउन में आपने क्यूबिकल बॉक्स रखने हैं, तो लेट मी नो, गोडाउन बड़ा कि क्यूबिकल बॉक्स बड़ा। गोडाउन बड़ा। कौन कहता है क्यूबिकल बॉक्स बड़ा, गोडाउन बड़ा। विच वन विल बी ग्रेटर, गोडाउन। तो अगर हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं, किसका वॉल्यूम ऊपर रखेंगे, गोडाउन का ऊपर, और नीचे क्यूब का वॉल। सो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब विल गिव यू द नंबर ऑफ क्यूब्स। चलो आई एम राइटिंग नंबर ऑफ क्यूब्स। पहले आप इसका वॉल्यूम निकाल लो,
सीधा लिख लो बच्चे, क्वाइट। नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, बेटे क्वाइट। नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। बेटे प्लीज क्वाइट, things are not as easiest as it seems to you. गोडाउन का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और एक क्यूब का वॉल्यूम 0.8। कटिंग वटिंग करो, आपके पास 90,000 क्यूब आ जाता है। 90,000। Yes, bete, quite. Now, the question number 10, bete, please quite. Question number 10 and 11, they are of the similar category. Let us discuss both the questions side by side. Example 10th and example 11. चलिए लेट अस सी, मैं दोनों को साथ साथ डिस्कस करूंगी, ध्यान से देखना। अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर पेपर है, ये लेंथ है और ये विड्थ है कितनी, 14 सेंटीमीटर। रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ एंड सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म। इसको विड्थ के अलोंग ऐसे मोड़ा गया और एक सिलेंडर बन गया जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हम कहते हैं रोल्ड अलोंग तो हम फोल्ड ऐसे करते हैं अलोंग, पर इसने दूसरी तरह से, हम यहाँ पे इसको फोल्ड करके इसको क्या ले लेते होते हैं 2πr, और जो दूसरी चीज होती है वो हाइट होती है। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि आपके पास रेडियस उसने दे दी, कितनी सिलेंडर की रेडियस 20, तो इसका मतलब जो फोल्ड किया है वो इसने ऐसे किया होगा और 14 क्या होगी, हाइट। ये बात देख लो, सबको क्लियर है। इस क्वेश्चन को की खासियत इसलिए मैं ज्यादा मानती हूं क्योंकि नो डाउट पेज को फोल्ड करके सिलेंडर बना है, पर रेडियस उसने आपको बता दी है। तो अगर रेडियस दी हुई है तो जो बचा हुआ है वो किसका, तो उसके लिए वर्क करेगा, हाइट के लिए। अगर रेडियस डिटरमिन्ड है 20, तो ये 14 क्या बनेगी, सिलेंडर की हाइट। ये बात क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप निकाल लोगे कैसे, फॉर्मूला लगा के, πr²h। अब दूसरी तरफ आओ, एग्जांपल नंबर 11, सिमिलर टू इट बट सम डिफरेंस, विद सम डिफरेंस। देखें जरा एग्जांपल नंबर 11, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर ब्रॉड, इट इज फोल्डेड टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। देखो जरा, इस बार उसने क्या फिक्स कर दिया, हाइट कितनी, 4 सेंटीमीटर, हाइट फिक्स हो गई 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब मुड़ा कौन होगा, जल्दी बोलो, राउंड कौन हुआ होगा, 11 वाला राउंड हुआ, तो 11 वाला राउंड होके सिलेंडर का क्या बन गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। जब मैंने इसको फोल्ड किया 11 भी फोल्ड हो गया, नीचे सर्कल की तरह फोल्ड हो गया। एक मिनट, इसका मतलब 11 किसके इक्वल है, 2πr के। कल करेंगे इसको डिस्कस, अभी टाइम कम है।